ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حسان تھا۔ حسان بچپن سے ہی بہت خوش اخلاق اور نرم دل تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کرتا، گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا اور دل سے سچ بولتا تھا۔ لیکن حسان کا دل ہمیشہ کچھ اور چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے اور اللہ سے دوستی کرے۔ ایک دن حسان اپنے والد سے پوچھتا ہے، بابا، میں اللہ سے دوستی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے والد مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، بیٹا، اللہ سے دوستی کے لیے سب سے اہم چیز عبادت ہے۔ اگر تم اللہ کی عبادات کرتے ہو تو اللہ تمہارے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ حسان نے دل میں سوچا کہ وہ اللہ سے دوستی کی سب سے بہترین کوشش کرے گا۔ اس نے اپنی زندگی میں چند چیزیں بدلنی شروع کیں۔ پہلا قدم یہ تھا کہ حسان نے نماز کی اہمیت کو سمجھا۔ وہ صبح اور شام کی نمازیں وقت پر پڑھتا اور نفل عبادات بھی شروع کر دیں۔ جب وہ نماز پڑھتا تو وہ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا اور اس کے ساتھ اپنی باتیں کرتا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ حسان نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ اس نے اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کی اور اس کی آیات پر غور کیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اللہ کا کلام نہ صرف ایک ہدایت ہے بلکہ یہ دل کو سکون اور تسلی بھی دیتا ہے۔ حسان نے اللہ کی عبادات میں ایسی لذت پائی کہ وہ دن رات اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا۔ اس کی زندگی میں ایک عجیب سی خوشی آ گئی۔ اب وہ اپنے دل کی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا اور ہر پریشانی میں اللہ سے مدد مانگتا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ ایک دن حسان اپنے گاؤں کے دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک بزرگ آدمی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ مسکرا کر حسان سے بولے، بیٹے، تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا راز ہے؟ حسان نے جواب دیا، بابا، میں نے اللہ سے دوستی کی ہے اور اب میری زندگی بہت بدل چکی ہے۔ بزرگ نے خوش ہو کر کہا، یہی اصل سکون ہے بیٹے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے تو اس کی زندگی میں چین اور سکون آ جاتا ہے۔ حسان نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ اور زیادہ اللہ کی عبادات کرے گا اور اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو مزید بڑھایا اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ اللہ کی عبادات اور اللہ سے دوستی نے حسان کی زندگی میں ایک نئی روشنی بھر دی۔ اب وہ ہر دن اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط کرتا اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کی کوشش کرتا۔ اس نے سیکھا کہ اللہ سے دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کی روح کو سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے، اور اس طرح حسان نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادات اور دوستی میں گزارا، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ حسان کی زندگی میں اللہ کی عبادات اور اس سے دوستی کا اثر مزید گہرا ہوتا گیا۔ وہ ہر دن اپنے دل کو اللہ کے قریب محسوس کرتا اور اس کی دعاؤں میں بھی ایسی قوت آ گئی تھی کہ جب وہ کسی مشکل میں ہوتا تو اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو سکون ملتا۔ گاؤں کے لوگ حسان کی تبدیلی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ وہ سمجھنے لگے کہ حسان کی خوشی اور سکون کا راز اللہ کی عبادت میں ہے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے حسان سے پوچھا، بیٹے، تمہاری زندگی میں یہ اتنی خوشی کہاں سے آئی؟ حسان مسکرا کر بولا، میرے دل کی سکون کی وجہ اللہ کی عبادات اور اس سے دوستی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور سکون کی ایک لہر اس کی روح میں چھا جاتی ہے۔ حسان کا کہنا تھا کہ اللہ سے دوستی صرف عبادات تک محدود نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ اپنے والدین کی عزت کرتا، گاؤں کے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا اور ہمیشہ دوسروں کی مشکلات میں مدد کرتا۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا اصل مقصد لوگوں کے دلوں میں محبت اور احترام پیدا کرنا ہے۔ ایک دن حسان نے اپنے والد سے کہا، بابا، میں چاہتا ہوں کہ ہم گاؤں کے غریبوں کی مدد کریں۔ والد نے حیرت سے پوچھا، تم کس طرح مدد کرنا چاہتے ہو؟ حسان نے کہا، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے، جیسے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ والد نے حسان کی باتوں کو سنا اور کہا، بیٹا، تمہاری بات درست ہے۔ اللہ کی عبادت اور دوسروں کی مدد کرنا ہی انسان کی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ حسان اور اس کے والد نے گاؤں کے غریبوں کے لیے کھانا اور دیگر ضروری سامان تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔
गांव के लोग हैरान हो गए कि ये लड़का जो पहले सिर्फ खुद में मगन था, अब अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की खिदमत में लग गया है। हस्सान का दिल खुशी से भर गया, क्योंकि वो जानता था कि अल्लाह का कुर्ब सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और खिदमत करने में भी है। यही वजह थी कि हस्सान का दिल अल्लाह की महब्बत से भर गया था। इसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना था, और वो इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता। वो जानता था कि अल्लाह से दोस्ती का रास्ता इबादत, नेकी और दूसरों के साथ अच्छे सुलूक से गुजरता है। और जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो इसकी ज़िंदगी में सुकून, खुशी और कामयाबी का आगाज़ होता है। यकीनन हस्सान ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के साथ एक सच्ची दोस्ती कायम कर ली थी, और इस दोस्ती का असर न सिर्फ इसकी ज़ात पर था, बल्कि पूरे गांव के लोगों पर भी था। इसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, और वो इसे याद करते हैं ताकि अल्लाह के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करे और अपनी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान पाई। हस्सान की ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू हुआ। जब इसने अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू किया और दूसरों के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखी, तो इसकी रूह में एक ख़ास किस्म की रोशनी आ गई। वो गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। इसकी इबादत, इसका दूसरों के साथ हसन सलूक और इसकी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा का जज्बा हर किसी को मुतासिर करता था। एक दिन हस्सान गांव के बुजुर्ग हाफिज साहिब के पास आया। हाफिज साहिब कुरान की तिलावत कर रहे थे, और हस्सान ने उनसे पूछा, बाबा, मैं चाहता हूं कि मेरी इबादत और अल्लाह से दोस्ती मज़ीद पुख्ता हो जाए। क्या आप मुझे कुछ और नसीहत कर सकते हैं? हाफिज साहिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, अल्लाह की रज़ा की कोशिश करने का सबसे अहम पहलू यह है कि तुम अपने दिल को हर वक्त साफ रखो। जब तुम्हारा दिल पाक होता है तो अल्लाह हर वक्त साफ रखो। जब तुम्हारा दिल पाक होता है तो अल्लाह की महब्बत तुम्हारे दिल में ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और आजिज़ी को अपना शियार बनाओ। हस्सान ने हाफिज साहिब की बातों को अपने दिल में बिठा लिया और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश की। इसने हमेशा सच बोलने, वादे पूरे करने और दूसरों की मदद करने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। हस्सान की इबादत और इसके अमल दोनों अल्लाह के करीब ले जा रहे थे। कुछ महीनों बाद गांव में एक मुश्किल वक्त आया। बारिशों की कमी की वजह से फसलें खराब हो गईं और गांव के लोग परेशान थे। हस्सान ने अपने वालिदैन और गांव के लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला किया। इसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह गांव के लोगों की मुश्किलात आसान करे और उन्हें रिज़्क दे। फिर इसने गांव के लोगों के साथ मिलकर खाना, पानी और ज़रूरी अशिया फराहम की। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें हस्सान की इबादत और अच्छे अमल का इल्म था, इसकी कोशिशों से बहुत खुश हुए। एक दिन एक बुजुर्ग ने हस्सान से कहा, बेटे, तुम्हारी ज़िंदगी एक रोशनी बन गई है। तुमने सिर्फ इबादत नहीं की, बल्कि तुमने अपने अमल से अल्लाह की रज़ा हासिल की है। यही है असल दोस्ती। हस्सान ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, अल्लाह से दोस्ती सिर्फ इबादत के ज़रिए नहीं होती। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों की खिदमत करते हैं, सच बोलते हैं और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये भी अल्लाह की इबादत है। हस्सान के दिल में अल्लाह की महब्बत और दोस्ती का जज्बा हर दिन बढ़ता गया। वो जानता था कि अल्लाह की दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में सुकून और कामयाबी देता है। इसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने का अहद किया और गांव के लोगों के दिलों में अल्लाह की महब्बत फैलाने की कोशिश करता रहा। हस्सान की कहानी एक मिसाल बन गई कि अल्लाह की इबादत और इससे दोस्ती इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल करती है। जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारी तो न सिर्फ हमारे दिल में सुकून आता है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक मशाल राह बन जाते हैं। हस्सान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और इसकी महब्बत हासिल करना था, और वो इस राह पर पूरी ईमानदारी के साथ चलता रहा। और इस तरह अल्लाह की इबादत और इससे दोस्ती ने हस्सान की ज़िंदगी को रोशन कर दिया, जिसकी रोशनी आज भी गांव के लोगों के दिलों में मौजूद है। हस्सान की ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत और इससे दोस्ती का असर दिन ब दिन बढ़ता गया। इसकी इबादत की बदौलत इसके दिल में एक अजीब सुकून था, और इसका हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता था। गांव के लोग इसे न सिर्फ एक अच्छे इंसान के तौर पर जानते थे, बल्कि एक रहनुमाई के तौर पर भी देखते थे। वो जानते थे कि हस्सान का दिल अल्लाह की महब्बत से भरपूर है, और इसके अमल से ये साबित होता था। एक दिन गांव में एक नया वाक़या पेश आया। एक गरीब किसान, जिसका नाम मोहम्मद था,
अपने खेतों में फसलों की नाकामी की वजह से शदीद परेशानी का शिकार था। वो हर रोज़ मायूसी में डूबा रहता और इसकी जिंदगी में एक सन्नाटा छा गया था। हस्सान ने जब मोहम्मद की हालत देखी तो वो फौरन इसके पास आया और पूछा, मोहम्मद भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मोहम्मद ने अफसुर्दा होकर जवाब दिया, हस्सान भाई, मेरी फसलें खराब हो गई हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने अहल खाना के लिए खाना मुहैया कर सकूं। मैं नहीं जानता कि अब क्या करूं। हस्सान ने मोहम्मद की बातें सुनी और इसकी हालत पर दिल से अफसोस किया। फिर वो कहा, मोहम्मद भाई, हमें अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखना चाहिए। अल्लाह वही करता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात आसान करे, लेकिन तुम्हें भी इसके रास्ते पर चलना होगा। हस्सान ने मोहम्मद को तसल्ली देने के बाद कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आइए हम मिलकर गांव के लोगों से मदद मांगते हैं ताकि हम आपकी ज़रूरतें पूरी कर सके। अल्लाह के रास्ते में मदद करने का बहुत बड़ा अजर है। हस्सान और मोहम्मद गांव के लोगों के पास गए और हस्सान ने उनसे कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में एक दूसरे का साथ देने से हमारी मुश्किलात कम हो जाती हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। गांव के लोग फौरन हस्सान की बात पर मुत्तफिक हुए और मोहम्मद की मदद के लिए आगे आए। ये देखकर हस्सान का दिल खुश हो गया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह के रास्ते पर चलने से न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है, बल्कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है। मोहम्मद की ज़िंदगी बदल गई, इसकी मुश्किलें आसान हो गईं और वो अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए हस्सान का शुक्रगुजार था। हस्सान ने इसे सिखाया कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इसकी रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह हमें हर मुश्किल से निकाल लेता है। हस्सान की ज़िंदगी का मकसद और भी वाज़े हो गया। वो जानता था कि अल्लाह से दोस्ती का रास्ता सिर्फ इबादत और दुआओं तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हर काम में अल्लाह की रज़ा को तलाश करने का नाम है। इसने इस बात को अपने अमल से साबित कर दिखाया। वो न सिर्फ इबादत करता था बल्कि लोगों के दिलों में अल्लाह की महब्बत भी फैलाता था। हस्सान की कहानी आज भी गांव के लोगों में सुनाई जाती है और वो हमेशा इसे याद करते हैं कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह से दोस्ती इंसान की ज़िंदगी में सुकून, खुशी और कामयाबी का दरवाज़ा खोलती है। हस्सान ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारा और इससे दोस्ती की एक ऐसी मिसाल पेश की जिससे न सिर्फ वो खुद बल्कि पूरा गांव फ़ायदा उठा सका। यूं हस्सान की कहानी आज भी हर दिल में जिंदा है और हर वो शख्स जो अल्लाह से सच्ची दोस्ती करने की कोशिश करता है, हस्सान की मानिंद कामयाब हो जाता है। हस्सान की कहानी गांव के हर कोने में सुनाई जाने लगी थी। लोग न सिर्फ इसके इबादत के तरीक़े और अल्लाह से दोस्ती के उसूलों को जानते थे, बल्कि इसके अमलों में अल्लाह की रज़ा का जो जज्बा था वो लोगों के दिलों में आतरता जा रहा था। हस्सान का दिल अल्लाह की इबादत से और भी ज़्यादा रोशनी से भर चुका था और इसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशी का एक नया दौर शुरू हो चुका था। एक दिन हस्सान अपने वालिद के साथ खेतों में काम कर रहा था जब इसके वालिद ने कहा, बेटा, तुमने जो काम किया है वो दिलों को छू लेने वाला है। तुमने सिर्फ इबादत नहीं की बल्कि लोगों के साथ मोहब्बत और ताउन के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल की। मुझे फ़ख्र है कि तुम मेरे बेटे हो। हस्सान ने मुस्करा कर जवाब दिया, बाबा, ये सब अल्लाह की रहनुमाई का नतीजा है। अल्लाह के रास्ते पर चलने से दिल में सुकून आता है और जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं तो हम हर कदम पर अल्लाह की मदद और बरकत महसूस करते हैं। ये बातें सुनकर हस्सान के वालिद की आंखों में भी एक चमक आ गई। वो समझ गए कि वाकई अल्लाह की रज़ा और दोस्ती इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। गांव के लोग अब हस्सान की तरफ देखते हुए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करते थे। वो जान चुके थे कि अल्लाह की इबादत और इससे दोस्ती का रास्ता इंसान के दिल को सुकून, खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाता है। गांव में एक नया जज्बा पैदा हो चुका था और हर शख्स अपने अमल में अल्लाह की रज़ा को तलाश करने की कोशिश करता। हस्सान ने भी फैसला किया कि वो सिर्फ गांव तक महदूद नहीं रहेगा। वो चाहता था कि वो और भी लोगों को अल्लाह की इबादत और इससे दोस्ती के फ़वाइद से आगाह करे। इसने एक छोटा सा तालीमी प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वो लोगों को सच्चाई, ईमानदारी और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की अहमियत बताता। गांव के बच्चे और बुजुर्ग इसके साथ शामिल हुए और हर किसी ने अल्लाह की इबादत और इसके रास्ते पर चलने का अहद किया।
حسان کا ایمان اور اس کی دوستی کا یہ پیغام گاؤں سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے لگا۔ لوگ حسان کی کہانی سنتے اور اس کے عملوں سے سبق لیتے۔ حسان نے زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، اور اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ جو بھی اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ ایک دن حسان کے گاؤں میں ایک بڑا اجتماع ہوا۔ گاؤں کے بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں نے اکٹھا ہو کر حسان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، حسان، تم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے راستے پر چلنا صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر اچھے عمل میں اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ ہم تمہاری رہنمائی کی قدر کرتے ہیں اور تمہاری طرح اللہ سے دوستی کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ حسان نے خوش ہو کر کہا، یہ سب اللہ کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ میں نے صرف وہی کیا جو ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، اور اگر ہم سب اللہ کے راستے پر چلیں تو ہماری زندگیوں میں سکون اور کامیابی آئے گی۔ یہ باتیں سن کر گاؤں کے لوگ جان گئے کہ حسان کی زندگی ایک ایسی روشنی بن چکی ہے جس سے ہر شخص اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کی عبادات اور اس سے دوستی کا جو پیغام حسان نے دیا تھا، وہ گاؤں کے ہر فرد کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ حسان نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر لیا تھا، اور اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی مثال قائم کی جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اس کی کہانی نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ پورے علاقے میں سنائی جاتی ہے، تاکہ ہر شخص اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کی عبادات اور اللہ سے دوستی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حسان کی کہانی گاؤں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک مثال بن چکی تھی۔ لوگوں نے نہ صرف اس کے علم سے فائدہ اٹھایا بلکہ اس کے عملوں سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ حسان نے اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزارا تھا، اور وہ مقصد تھا اللہ کی رضا اور اس سے دوستی۔ اس کی عبادات اور نیک عملوں نے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا کی، اور وہ سب اپنے دلوں میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حسان کی ملاقات ایک مسافر سے ہوئی جو گاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ مسافر تھکا ہوا اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ حسان اس کے پاس گیا اور محبت سے کہا، السلام علیکم بھائی، آپ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ مسافر نے سر اٹھا کر حسان کو دیکھا اور بولا، وعلیکم السلام، میں بہت تھکا ہوا ہوں، سفر میں مشکلات پیش آئی اور میرے پاس کچھ نہیں بچا، زندگی سے مایوس ہوں۔ حسان نے اس کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر کہا، بھائی، اللہ کی رضا اور اس سے دوستی انسان کو ہر مشکل سے نکال لاتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ مسافر نے حیرانی سے پوچھا، کیسے؟ حسان نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کے راستے پر چلنا زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔ اللہ کی عبادات میں ہم اپنے دل کو پاک کرتے ہیں اور اسے ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ تم جس بھی مشکل میں ہو، تمہارا ایمان تمہیں اس سے نکالے گا اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ باتیں سن کر مسافر کا دل بدل گیا۔ اس نے حسان کی باتوں کو اپنے دل میں اتارا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سفر کو اللہ کی رضا کے لیے جاری رکھے گا، اور جو بھی مشکلات آئیں وہ ان کا مقابلہ ایمان سے کرے گا۔ حسان نے مسافر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کا وعدہ کیا اور اسے اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی ہمت دی۔ اس کے بعد حسان نے گاؤں واپس جا کر اپنی معمول کی عبادات شروع کر دے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت مزید گہری ہوتی گئی۔ حسان کی زندگی کا ایک اور مقصد تھا اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنا، اور اسی مقصد کو پورا کرتے ہوئے اس نے گاؤں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں لوگوں کے دلوں میں ایمان، محبت اور سکون پھیلانے کا عمل جاری رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنا ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر قدم پر سکون اور کامیابی ملتی ہے، اور اس کی زندگی کا یہی پیغام تھا۔ ایک دن حسان گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب ایک بزرگ نے کہا، حسان، تم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہماری زندگیوں کا قیمتی حصہ بن چکا ہے۔ تم نے اللہ کی عبادات اور اس سے دوستی کا جو راستہ ہمیں دکھایا ہے، ہم اس پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں میں سکون اور کامیابی پا رہے ہیں۔ حسان مسکرا کر بولا، یہ سب اللہ کی مدد اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے، اور جب ہم اس سے دوستی کرتے ہیں تو زندگی میں ہر لمحہ سکون، محبت اور کامیابی کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ حسان کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انسان اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لے تو نہ صرف اس کی زندگی بدل جاتی ہے
बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाता है। हस्सान ने अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल की जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के ज़रिए मुमकिन है, और वो एक मिसाल बन गया कि हकीकी सुकून और खुशी का राज अल्लाह की इबादत और इससे सच्ची दोस्ती में छुपा होता है। हस्सान की कहानी गांव से बाहर भी फैल गई थी, और लोगों का एक बड़ा हल्का इससे मुतासिर हो चुका था। इसके अमलों और इबादत ने लोगों के दिलों में अल्लाह की महब्बत और इसके रास्ते पर चलने की तड़प पैदा की। वो जानते थे कि हस्सान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और इससे दोस्ती था, और इसी रास्ते पर चलकर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी हासिल कर सकता है। एक दिन हस्सान के गांव में एक करीबी शहर से एक आलमदीन आए। उनका नाम मौलाना सुलेमान था, और वो मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को दीन की तालीम देने के लिए सफ़र करते थे। जब मौलाना सुलेमान ने हस्सान के बारे में सुना तो वो गांव पहुंचे और हस्सान से मिलने के लिए इसके घर गए। मौलाना सुलेमान ने हस्सान से कहा, बेटे, तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुन चुका हो। तुमने जो अल्लाह की इबादत और इससे दोस्ती के बारे में जो कुछ सिखाया है वो बहुत कीमती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इल्म और तजर्बात को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ। हस्सान ने कहा, मौलाना, ये सब अल्लाह की मदद और इसकी हिदायत का नतीजा है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारी तो हमारे दिल में सुकून आता है और हम हर मुश्किल का मुकाबला ईमान के साथ कर पाते हैं। मौलाना सुलेमान मुस्करा कर बोले, तुम्हारी बातें बहुत सच्ची हैं और तुम्हारी ज़िंदगी का पैगाम बहुत अहम है। मुझे खुशी है कि तुमने अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलने का अहद किया है, और अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने इल्म को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। हस्सान ने मौलाना सुलेमान की बातों को दिल से सुना और फैसला किया कि वो वाकई अपने तजर्बात और इल्म को दूसरों तक पहुंचाएगा। इसने गांव के नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक छोटा सा तालीमी प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वो अल्लाह की इबादत, सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की अहमियत के बारे में लोगों को बताता। हस्सान का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। गांव के लोग इसमें भरपूर शिरकत करते और इसकी बातों को अपने दिलों में उतारते। हस्सान ने ये सिखाया कि अल्लाह से दोस्ती सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं है, बल्कि हर अच्छे अमल में अल्लाह की रज़ा तलाश करना ज़रूरी है। इसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ खुद को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि हर इस शख्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाना था जो अल्लाह की रज़ा की तलाश में था। गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सब हस्सान की रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, और वो जान चुके थे कि अल्लाह के रास्ते पर चलने का मतलब सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि सच बोलना, दूसरों की मदद करना और हर अमल में अल्लाह की रज़ा को तलाश करना है। हस्सान के अमल ने पूरे गांव में एक नई तब्दीली पैदा कर दी थी, और लोग इसकी बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों में सुकून और खुशी पा रहे थे। कुछ साल बाद हस्सान का गांव एक रोशन मिसाल बन चुका था कि किस तरह अल्लाह की इबादत और इससे सच्ची दोस्ती इंसान की ज़िंदगी को बदल सकती है। लोग दूर दूर से आकर हस्सान के गांव में अल्लाह के रास्ते पर चलने के तरीके सीखने आते। हस्सान ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पर गुजारा और इसके रास्ते पर चलकर एक ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रह गई। हस्सान की कहानी आज भी लोगों के दरमियान सुनाई जाती है। वो जानते हैं कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारता है तो न सिर्फ इसकी अपनी ज़िंदगी बदलती है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाता है। हस्सान ने साबित कर दिखाया कि अल्लाह से दोस्ती का रास्ता इबादत, नेक अमल और सच्चाई में है, और इस रास्ते पर चलकर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून, महब्बत और कामयाबी हासिल कर सकता है। हस्सान की ज़िंदगी का सफ़र अल्लाह की रज़ा की तलाश में जारी रहा, और इसके अमलों ने न सिर्फ गांव बल्कि पूरे इलाके में एक इनकलाब पैदा कर दिया था। इसने अपने इल्म, तजर्बात और अक़ीदे को लोगों के दरमियान फैलाया और हर शख्स को ये समझाया कि हकीकी सुकून और खुशी अल्लाह की इबादत, सच्चाई और दूसरों के साथ हसन सलूक में है। हस्सान के दिल में ये यकीन था कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए जीता है, इसकी ज़िंदगी में कभी भी परेशानियों का देरपा असर नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह इसकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहता है। एक दिन हस्सान के गांव में एक और बुजुर्ग आलमदीन तशरीफ़ लाए। उनका नाम मौलाना यूसुफ था, और वो पूरे इलाके में अपनी सच्चाई और इल्म के लिए जाने जाते थे। मौलाना यूसुफ ने हस्सान के बारे में सुना था और इसके बारे में जानना चाहते थे कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पर गुजार रहा है। जब मौलाना यूसुफ ने हस्सान से मुलाकात की तो हस्सान ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया और उनसे कहा, अस्सलाम अलैकुम मौलाना, आपका यहाँ खैर मक़दम है।
मौलाना यूसुफ ने कहा, वालेकुम अस्सलाम हस्सान, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी को एक मिसाल बनाया है। तुम्हारी इबादत और नेक अमलों के बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओ ताकि मैं भी तुमसे कुछ सीख सको। हस्सान ने मुस्कुरा कर कहा, मौलाना, मेरी कहानी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये समझा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। इबादत में दिल की पाकीज़गी, सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की नीयत रखनी चाहिए। जब हम ये सब अल्लाह के लिए करते हैं तो हमारा दिल सुकून से भर जाता है और हम दुनिया की मुश्किलात का सामना ईमान के साथ करते हैं। मौलाना यूसुफ ने हस्सान की बातों को गौर से सुना और कहा, तुम्हारी बातें बहुत सच्ची हैं हस्सान। वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारना ही वो रास्ता है जिससे इंसान की रूह को सुकून मिलता है और इसकी ज़िंदगी में कामयाबी आती है। तुम्हारी कहानी से मुझे ये सीखने को मिला कि इंसान को अपनी इबादत के साथ साथ अपने अमलों को भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो सके। मौलाना यूसुफ ने हस्सान को मज़ीद तक़वियत दी और कहा, अब तुम्हारा काम यह है कि इस इल्म को मज़ीद लोगों तक पहुँचाओ। तुमने अल्लाह की इबादत और इसके साथ सच्ची दोस्ती का जो रास्ता सिखाया है वो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। हमें इस पैगाम को हर गोशे तक पहुंचाना होगा ताकि लोग अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह की रज़ा को अहमियत दें और उसी के रास्ते पर चलें। हस्सान ने मौलाना यूसुफ की बातों पर गौर किया और कहा, मौलाना, आपकी रहनुमाई बहुत अहम है। मैं इस पैगाम को हर शख्स तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह का रास्ता ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान सुकून और कामयाबी हासिल करता है। मौलाना यूसुफ ने हस्सान की इस नीयत को सराहा और कहा, मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह तुम्हारे सफ़र को कामयाब बनाए।